Hello students, today we are here to discuss the subject computer for class 6, and in this class we will discuss the first chapter of our book. The chapter's name is Let Us Explore Our Computer Operating System and Application Software. So in first chapter we will be discussing about the computer, the functionality of the computer systems, the major components of the computer systems, and how the computer works. All these things we will discuss in this chapter. So please be attentive. Now we are going to start, because this chapter will help you to know more about the computer systems, how the computer works. You will be able to know about this chapter, about these topics, once this chapter is complete. So let's start the first topic, which is just 1 minute. So computer, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग वी मस्ट नो अबाउट द कंप्यूटर्स. अगर हम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे बात कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर? सो बेसिकली द वन हु कंप्यूट्स इज नोन एज द कंप्यूटर. आप सभी जानते हैं द डिवाइस विच हेल्प्स यू इन द कंप्यूटिंग, that is known as the computer. But as the part of our syllabus, we have to know a systematic, a technical definition also. So that the definition which is given in our book is this: an electronic device that takes an input, processes it and gives an output. तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर takes input from you and after processing it gives you the output. So what is our input here, what is output, what is processing? We will be discussing all these things in our next slides. So just we are moving to the next slide. See this happens when we give the raw data or facts. It goes into the computer and after processing it becomes the output, useful information or output. So this is the process, this is the main process of the computer system, and this happens every time. Whenever you give anything as input, that is being processed, and after processing what you will get? You will get useful information or output. So this is the functionality of your computer system, and it is very easy to understand. So the raw data are facts जो हम input करते हैं, that is known as the input, and after that it is being processed, and after processing we are getting the output, the useful information. So this is IPO cycle: I input, P processing, O output. Every device works on this principle. Every computer in the world works on this principle, that takes input, that processes, and after processing gives the output. So let's come to the next slide. What is there? The computer takes input as raw data or raw facts. Means whatever we have, which we wish to process, we will input inside the computers. हम computers को वो data provide कराएंगे. Whatever we will give, means the information which we are going to put into the computer, that is known as the input. Okay, and then processes it into the information. The computer processes the input taken into the information, means in a meaningful fact. Whatever the raw facts which we have provided, that is after processing being converted into the meaningful facts, and after that it gives us an output. The computers also have the ability to store and retrieve the data. मतलब हम कंप्यूटर में जब डेटा देते हैं, जब भी हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है. आउटपुट क्या है? द मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड मीनिंगफुल डेटा, दैट इज योर आउटपुट. इसके बाद हमारे पास हमारे कंप्यूटर में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा. वट एवर द आउटपुट वी हैव, वट एवर द आउटपुट वी आर गेटिंग, और वट एवर इनपुट वी विश, if we want, we can store that into the computers, and computers have the ability to retrieve the stored data also. आप जो भी store करेंगे आप उसको retrieve भी कर सकते हैं. This is the power of the computer, this is the strength of the computer, this is the advantage of the computer. आप जैसे भी समझे, but this is the
फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपके आईपीओ साइकिल पे तो वर्क करता ही करता है, बाकी आपको कंप्यूटर ये फैसिलिटी देता है, आपको इतना फैसिलिटेट करता है कि आप इनपुट दीजिए, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हम आपको आउटपुट देंगे, और आउटपुट देने के बाद भी वी हैव द ऑप्शन टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स। Okay, coming to the next slide. So once again we will discuss the computer system. Before this slide we discussed about the IBO cycle, means the functionality of the computer, but here we will be discussing the computer system. So the input devices, they help you to provide the input to the computer, and here is the processor of computer, processor or CPU. The memory unit is also connected inside this processor. So let us see. The second one is the processor or CPU. It processes the data or input. Whatever data you are providing to the computer, that will be processed. हम उसको प्रोसेस करना ही करना है, तो प्रोसेस करने का काम आपका प्रोसेसर का करता है, या फिर आप उसको CPU भी कह सकते हैं। CPU means the central processing unit. Again the processing word is here. It means this is the main functionality of the computer. And CPU is also known as the brain of the computer. And memory is also connected internally to the CPU part, because it is also required for the retrieval, for the execution of the instructions, for the retrieval of the data, for the storage of data. So memory is internally connected. We will be discussing it later in our higher classes in detail, but here just in a brief we must know that memory is also internally connected with the CPU, so that our processing becomes faster and easier. And the next, after the processing, what happens? There are output devices. They provide us the meaningful information, and whatever the data we provided, and after processing, that is being converted into the important and meaningful data, and that is known as the output. तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती है जिनकी सहायता से हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, और हमारे सिस्टम में जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, उसको प्रोसेस करता है। मेमोरी की भी हेल्प ली जाती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में। एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग हमको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमको आउटपुट मिलता है। ओके, सो द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इनपुट सिस्टम है, उसमें इनपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, देन आउटपुट यूनिट है। अब हम बात करेंगे कि अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हर यूनिट में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या सभी में कुछ कॉमन्स हैं। तो लेट अस सी, द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में मिला के हमारे कंप्यूटर्स बने हुए हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर। Without hardware and without software, our computer is not complete, it is not functionable, it is not functionable. Okay, so now hardware. What is hardware? The physical components of the computer system which we can touch and feel are called hardware. जितने भी पार्ट्स आप कंप्यूटर के टच कर सकते हो, देख सकते हैं, यूज करते हैं, टच कर सकते हैं, दे आर नोन एज द हार्डवेयर. And another definition of the hardware is that collection of physical parts of a computer system. Means all the physical parts of the computer system is known as hardware. Okay. Now, what is software? So, software is a set of programs which governs operations of the computer system. यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को जो गवर्न करते हैं, जो मैनेज करते हैं, they are known as the softwares. Software consists of instructions that tells the hardware how to perform a task. अब देखिए, आप सभी कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे जब बेसिकली आपने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ा था, तो यू नो दैट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इट्स ऑन. So each and everything whatever we wanted to do with the help of computers, we have to give the instructions. आप कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाहते हैं, you have to give the instruction to the computer and then only computer will perform the task. अब हम कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे? जैसे अगर आपको घर में किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो व्हाट यू विल डू, आप जिस भाषा में बात करते हैं आप उस भाषा में बोलेंगे, आपके घर वाले भी उसी भाषा को समझते हैं,
आपका इंस्ट्रक्शन उन तक आसानी से पहुंच जाएगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू कन्वे योर मैसेज। लेकिन क्या आप कंप्यूटर की भाषा जानते? डू यू नो द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? या कंप्यूटर आपकी भाषा जानता है? नो, वी कैन नॉट टॉक टू द कंप्यूटर डायरेक्टली, सो वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन इन अनदर फॉर्म। अब वो अनदर फॉर्म क्या होगा? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सब नहीं जानते। अगर सब नहीं जानते तो इसका मतलब देयर इज अनदर वे which will help you to communicate with computer. Yes, you all are thinking right, and that is software. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपको हेल्प करता है, हर यूजर को हेल्प करता है जिससे वो कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके। वट एवर इंस्ट्रक्शंस ही वांटेड टू गिव, he or she wanted to give, they can easily provide the instructions with the help of softwares. सॉफ्टवेयर को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है तो जितने भी आपके कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं आप उनको आसानी से यूज कर पाए, स्मूथली यूज कर सके, हैसल फ्री वे में, इफेक्टिव तरीके से यूज करना चाहें तो वी हैव द सॉफ्टवेयर एंड दे विल हेल्प अस। नाउ एक टर्मिनोलॉजी आई थी आपके सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? सो सी द program is what? Program is set of instructions that tells the computer what to do. प्रोग्राम क्या है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे कंप्यूटर्स को ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये बताता है कि आपको क्या करना, कैसे करना। किसी भी टास्क को करने की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से देते हैं और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द प्रोग्राम। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज इट कैन अंडरस्टैंड। अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम कंप्यूटर की भाषा तो नहीं जानते, फिर हम कैसे बात करेंगे? तो इंस्ट्रक्शन उसी भाषा में दिए जाते हैं जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शंस का बंच बना देते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो इंस्ट्रक्शन इज द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, अब एक चीज और ध्यान देने लायक है, आप इसको देखें। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, टुगेदर दे फॉर्म अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम। जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग आप यूज करना चाहें तो यू कैन नॉट यूज, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंडिविजुअली हार्डवेयर भी आपके काम करनी है, इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर भी आपके काम करनी है। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे टुगेदर फॉर्म अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम। जब हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तभी हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर पाते हैं और तभी हम कंप्यूटिंग कर भी पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। जब हमने हार्डवेयर समझ लिया, सो वी मस्ट डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हार्डवेयर। द इनपुट डिवाइस, this is the hardware, means this is the type of hardware. The processing devices, the storage devices, output devices, communication devices, there are various categories of the devices that are known as the hardware. जब हमने हार्डवेयर का डेफिनेशन पढ़ा था तो what we discussed that every part which we can use, which we can touch is known as the hardware. अगर आप अपने बुक की बात करें तो आपके बुक में एक बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है। आपकी नोटबुक को लेके, आपकी नोटबुक में जितने भी पेजेस हैं दे आर हार्डवेयर, और जो आप उस पर लिखते हो दे आर द सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो चीज़ आपने लिखा है यू कैन नॉट टच, आप उसको देखते हो, आप उसको पढ़ते हो, बट यू कैन नॉट टच। और आपके पेजेस के बारे में क्या है? आप उसको देखते हो, आप उसको यूज तो कर ही रहे हो, आप उसको टच भी कर सकते हो। अब आप सोचते हो कि हमने लिखा ए, हम उसको टच करें, यू आर नॉट टचिंग ए, यू आर टचिंग द पेज। आप उस ए को थोड़ी टच कर पा रहे हो। आप जब अपनी उंगली वहां रखो तो आपको ए फील होता है, आप तो पेपर को ही फील कर रहे हो ना। ये आप अपने इंटेलेक्चुअल पावर से आप डिसाइड कर रहे हो कि हमने ए को टच किया, बट एक्चुअली यू आर टचिंग द पेपर। इन द सेम वे वी हैव द हार्डवेयर। तो जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो डायरेक्टली, दे आर नोन एज द हार्डवेयर। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर।
जैसा हमारा सिलेबस अलाउ करेगा हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। अगर हमारा सिलेबस अलाउ नहीं करेगा इन चीज़ों को तो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू द टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए थे, सॉफ्टवेयर क्या था, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स क्या थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन क्या था, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में दिया हुआ कमांड। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज क्या क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर ऑफ मशीन। मशीन यानी हम कंप्यूटर की बात कर लें या दुनिया की किसी भी मशीन की बात कर लें जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली उस मशीन के हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करते हैं, दे आर नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर्स की, क्योंकि अभी हम कंप्यूटर्स की क्लास में हैं, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर्स ओनली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर ऑफ द मशीन। यानी अगर देखें इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर फंक्शनेबल ही नहीं है, हम उसको ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो जो सॉफ्टवेयर हमको डायरेक्टली हमारे सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू द टू कैटेगरीज। वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए देखते व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम देख ही रहते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम को और डिटेल में समझते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जितने भी हमारे सिस्टम में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो, यूजर यानी हम और आप जो हम सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस देता है जिससे हम इस कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, इट इंश्योर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस नहीं देता, आपको ये भी एश्योरेंस मिलता है, ये भी इंश्योर कराता है कि सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट है आपको यूज़ करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। ओके, एंड all the hardware resources are used efficiently. Whatever the resources we have into the computers, they are also being utilized. Efficiently यूज़ करने का मतलब क्या है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज किए जाते हो और उनका मैनेजमेंट अच्छा हो, हर डिवाइस को जब उनकी ज़रूरत हो उनको अलॉट किया जाए। ये सब डिटेल में हम आगे देखेंगे कि क्या है ये एफिशिएंट यूज़ कैसे होता है, कैसे यूटिलाइजेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑल दीज थिंग्स आर इन द हायर क्लासेस, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। बट हियर हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस देता है जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंट वे में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। एंड all the hardware resources are also used efficiently. ठीक है, see the diagram here, इससे हम और आसानी से समझ सकते हैं कि कैसा इंटरफेस ये हमें देता है। सबसे पहले हम देखें, अगर बात करें तो बॉटम में देखें तो हार्डवेयर हैं, यानी हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। सो वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, हार्डवेयर के एरो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एरो है जो आपके हार्डवेयर की तरफ है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। एंड देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या करते हैं, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डजंट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनाई गई है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी इसीलिए बनाई गई है कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं जो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। So the application softwares are also being installed on the operating systems. तो ये भी क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। और यूज़र, हम कभी कभी हमें अगर ज़रूरत हो तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्स टाइम हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कभी हमको गाना सुनना है तो कोई मीडिया प्लेयर यूज़ करेंगे, मूवी देखनी है तो कोई वीडियो प्लेयर देखेंगे, इंटरनेट यूज़ करना है तो हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई ब्राउज़र यूज़ करेंगे, हमें कैलकुलेशंस करने हैं तो हम कोई कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके,
तो हम इन सारे एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे और ये सारे एप्लीकेशंस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो जैसा कि हमने लास्ट पेज के डेफिनेशंस में पढ़ा था, क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये हमको हमारे हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट कराता है, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे अगर आप गाना बजा रहे हैं, सपोज आप कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, तो आप जो सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसमें अगर वीडियो सॉन्ग है तो आपके ग्राफिक्स को भी इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए, यानी आपके डिस्प्ले यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हमें ये विजुअल्स प्ले करने हैं, और आपके ऑडियो सिस्टम्स को भी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हमें ये ऑडियो साउंड प्ले करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, मतलब ये उसको इंस्ट्रक्शन देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस इंस्ट्रक्शन को फर्दर जिस जिस डिवाइस के लिए वो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उन तक फॉरवर्ड कर देता है, और वो इंस्ट्रक्शंस आसानी से एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो एक दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अभी ये समझते हैं आज की क्लास में। बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक्स। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रैम। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर बंद है, उसको हम क्या करते हैं, पावर बटन प्रेस करके ऑन करते हैं। तो ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था तो देखा था आपने, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा, पढ़ा था अभी हम लोगों ने। तो यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क में ही स्टोर करके रखा जाता है। अब ये हार्ड डिस्क क्या है, दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में ये सब कुछ स्टोर रहती है। तो वहाँ से जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से हमारे रैम में, यानी हमारे प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द बूटिंग। ओके, थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा बूटिंग का प्रोसेस है। अब बूटिंग क्या है, देखिए लास्ट हमारा हेडिंग वही लिखा हुआ है, बूटिंग इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी टर्न ऑन आवर कंप्यूटर। स्टार्ट मतलब वो हमारा कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से स्टार्ट होकर रैम में लोड हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को बूट कराते हैं तो इट हैपेंस। अब ये हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच वी कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा। तो हम अपने कंप्यूटर्स में जब भी जो डाटा स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस क्लास। बाकी के टॉपिक्स हम इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।